السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے؟ کوئی بولتا کیوں نہیں؟ بھائی اگر بات نہیں کرنی تو کال ہی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل صوفے پر پھینک دیا۔ عجیب پاگل لوگ ہیں، دماغ خراب کر دیا ہے انہوں نے میرا۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر فاروق اسے چڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے پاس دماغ ہے کیا جو کوئی خراب کرے گا؟ تم تو چپ ہی کر جاؤ، مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ او ہیلو میڈم، تمیز سے بات کرو، مجھے تم سے آفٹر آل 2 مہینے بڑا ہوں، اس نے فخر سے اپنے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بڑا ہونے کا، جب دماغی گھٹنوں میں ہو۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، آمنہ بیگم بول پڑی، کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنا مت شروع کر دیا کرو، پھر تم لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر دنوں تک منہ بنا کر گھومتے رہتے ہو۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے اور ان کی دوستی سے سارا خاندان ہی واقف تھا۔ میں تو سب سے پہلے اس کے شوہر کو جا کے بتاؤں گا کہ یہ کس قدر بدتمیز عورت ہے اور اس نے اس کو اپنے منگیتر بنا کر اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ بھائی یہ تو اپنے شوہر کو باتیں سنا سنا کر ہی مار ڈالے گی۔ فاروق، اب اگر تم نے کچھ بھی کہا، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں تایا جان کو جا کر تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی، پھر میں دیکھتی ہوں تم کیسے میرے شوہر کو بتانے کی جرت کرتے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے راز فاش کرنے پر تیار ہو جاتے، آمنہ بیگم نے ان دونوں کو خاموش کروایا۔ بس بہت ہو گیا، اپنی لڑائی صرف اپنے تک محدود رکھا کرو، باقی لوگوں کو اپنے راز نہ بتایا کرو۔ وہ دونوں ہی حد سے زیادہ بے وقوف تھے۔ عریشہ منہ بنا کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور ٹی وی اٹھا کر چینل آگے پیچھے کرنے لگی۔ فاروق تھوڑی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے 2 دنوں سے کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ جس سے اس کی منگنی ہوئی تھی تب سے وہ ٹینشن میں تھی۔ وہ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے بھائی کو بتاؤ۔ مجھے ایک رانگ نمبر سے مسلسل کچھ دنوں سے کالز آ رہی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ ارے تو آسان سا حل ہے، نمبر بلاک کر دو، فاروق نے فوراً حل بتایا۔ میں نے کئی بار بلاک کیا مگر وہ ہر بار ایک نئے نمبر سے کال کرتا ہے۔ بھئی حیرت کی بات ہے، اتنے زیادہ نمبر کہاں سے آئے اس کے پاس؟ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے، وہ کسی پبلک فون بوتھ سے بھی تو رابطہ کر سکتا ہے۔ عریشہ نے اس کے علم میں اضافہ کیا تو وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ تو پھر اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، تم بس اس کو نظر انداز کرو، کال آئے تو کاٹ دو۔ ہاں اگلی بار ایسا ہی کروں گی۔ اس نے جیسے اپنے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب بتاؤ مجھے کہ بیڈمنٹن کا کیا سین ہے؟ میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے، کل سے ویسے بھی میری یونیورسٹی شروع ہو جائے گی، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ سوچ رہی ہوں آج کی رات ہلا گلا کرتے ہیں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے ارادے بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ ان دونوں کی لڑائی اتنی ہوتی تھی، بس تھوڑی دیر کے لیے آپس میں لڑے پھر سے راضی ہو گئے۔ سکندر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تم کہو تو میں ان کو بھی بلا لیتا ہوں، ان کو بھی تو پتا چلے کہ ان کی بیوی کتنا اچھا بیڈمنٹن کھیلتی ہے۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ اسے مصنوعی غصے سے گھورنے لگی۔ اس کے لال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے، جبکہ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ جاگی تھی۔ وہ سکندر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور وہ اسے ہمیشہ ہی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ سکندر بھی اس سے پیار کرتا تھا، وہ اسے سمجھتا تھا۔ باقی روایتی مردوں کی طرح اس نے کبھی بھی اس پر روک ٹوک نہیں کی تھی، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہی ہر چیز کی آزادی دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کی دل کو تکلیف پہنچے۔ وہ سب اس وقت باہر جمع ہو گئے تھے۔ اسے مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار دائیں بائیں دیکھتی مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں فوکس کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ اس بار دوسری گیم ہار رہے تھے۔ یار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو، اس نے پریشانی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہوتا ہے تو اسے بھی یہی لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ سونیا نے اپنا علم جھاڑا۔ جن کا نہیں، مجھے کسی چڑیل کا سایہ لگتا ہے۔ فاروق سونیا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اسے ہمیشہ ہی تنگ کرتا رہتا تھا، اور شاید یہی اس کی لو لینگویج تھی۔ کبھی کبھار عریشہ کو غصہ آتا تھا
वो फारूक को समझाती थी कि अगर तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत है तो उस लड़की से जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करो, उसे अहमियत दो, उसे अपनी मोहब्बत महसूस करवाओ। अगर तुम इसी तरह उसे परेशान करते रहोगे तो वो तुम्हारे करीब आने के बजाय तुमसे दूर हो जाएगी। फारूक भी उसकी बातें सुनकर हाँ में सर हिला देता था, मगर मिजाल है जो कभी उसने किसी बात पर अमल किया हो। वो हमेशा वही करता था जो उसके दिल में आता था। उन लोगों को खेलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी। घर का बैरूनी दरवाजा खुला और घर के अंदर दाखिल हुआ। उसको देखकर वो सब लोग चौंक पड़े। वो उस वक्त सूट में मलबूस था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, हद से ज्यादा हैंडसम, चेहरे पर संजीदगी सजाए वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। सोनिया ने उसे देखकर बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। यार ये कितना हैंडसम है, उसकी जुबान फिसली। यार ये वही साइम है ना उसके साथ ही, उसने अरीशा से सवाल किया। फारूक ने उसे गुस्से से घूरा, मगर इस वक्त वो उसे देख ही नहीं रही थी। आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो उनकी बातों का जवाब दिए बगैर अरीशा को देखने लगा। उसकी नजर अरीशा से एक लम्हे के लिए भी हट नहीं रही थी। फारूक उसे नहीं जानता था। उसकी बात पहले इससे मुलाकात हुई थी, उसके बाद साइम मुल्क से बाहर चला गया था और अब काफी सालों के बाद वो मुल्क वापस आया था। अरीशा उसे पहली ही नजर में पहचान चुकी थी। वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया था। वो खुद भी बहुत ज्यादा घबराने लगी थी और फारूक के पीछे जाकर छुप गई। मैं इकराम साहब से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, उसने फारूक के चेहरे की तरफ देखते हुए दो टोक अंदाज में कहा। वो तो इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है, वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हैं। उन्हें तो गए हुए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं। अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझसे बात करें, आजकल मैं ही उनका बिजनेस संभाल रहा हूँ। ये सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंसा, यूं जैसे उसने फारूक का मजाक बनाया हो, और ये चीज उसे बहुत बुरी लगी थी। फारूक ने अपनी मुट्ठी गुस्से से भींच ली। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अरीशा ने उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे थपकी दी। साइम अब खूनखार नजरों से अरीशा के हाथों को देख रहा था जो फारूक की बाजू पर मौजूद थे। ठीक है, फिर आप उनके वापस आने का इंतजार करें। क्या वो मुझे अपना नाम बताना पसंद करेंगे, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कौन आया था और मैं उन्हें बता सकूं? फरूक भी अजीब से अंदाज में बोला था। उसने अपना नाम बताने के बजाय अपना कार्ड उसके हवाले किया। ओ सर, आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की? आप मुझे बुला लेते, मैं खुद ही आपके पास चला आता। सर आप मेरे साथ चलें, चाय वगैरह पीते हैं और फिर उसके साथ ही बात भी कर लेंगे। फारूक उसे अपने साथ लेकर कमरे में चला गया, जबकि सोनिया गुस्से से उसे घूरने लगी। यार देखो किस कदर मतलबी इंसान है, और कैसे गिरगट की तरह रंग बदला इसने। देखा था पहले कितने बुरे अंदाज में उससे बात कर रहा था, और अब देखो कैसे उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। इन लोगों की गेम भी बर्बाद हो गई थी। बाकी कजन भी अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जबकि वो सहन में ही खड़ी रह गई। क्या ये इंसान वाकई मुझे घूर रहा था, या फिर मुझे गलतफहमी हुई है? उसने सोनिया से सवाल किया तो वो चंद लम्हों के लिए खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगी। तुम तो जानती हो कि मैं इस मामले में हद से ज्यादा जेलस बंदी हूँ, और मैं किसी की नजरें अपने अलावा किसी और पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी तुम्हें बता देती हूँ कि वो तुम्हें ही घूर रहा था। तुमने उसके सामने अपनी अंगूठी करनी थी, ताकि उसे अंदाजा हो जाता कि अब यहाँ पर जगह खाली नहीं है। ये कहकर वो हंसती हुई वहां से चली गई। वो भी खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि बेड पर फूलों का एक बहुत बड़ा बुके पड़ा हुआ था। वहां पर लिली के फूल थे जो उसके फेवरेट थे, जबकि ईमान वाशरूम के अंदर थी। यकीनन वो फ्रेश हो रही थी। उसने यही सोचा कि ये उसकी बहन लाई है। यार ये कितने प्यारे फूल हैं, तुम्हें किसने दिए? ईमान ने बाहर निकलते ही उससे सवाल किया। तो वो हैरत से उसके चेहरे को देखने लगी। क्या मतलब, ये तुम नहीं लाई क्या? नहीं यार, मैं जब आई तो ये पहले से बेड पे पड़े हुए थे। मुझे लगा तुमने मंगवाए हैं या फिर तुम्हें किसी ने दिए हैं। नहीं, मुझे किसी ने नहीं दिए, उसने परेशानी से जवाब दिया। हो सकता है फारूक तुम्हारे लिए लाया हो, ईमान ने उसे तसल्ली दी और अपने बाल सुखाने लगी। वो जानती थी कि फारूक जितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, वो उसे कभी भी फूल गिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि गिफ्ट देना तो उसकी आदत ही नहीं थी। चलो खैर छोड़ो, उसने इस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर अब ये चीज भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी।
पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात पेश हो रहे थे। वो जितना खुद को इन चीज़ों से निकालने की कोशिश करती, उतनी ही उसमें फँसती चली जा रही थी। तकरीबन मंगनी से 1 हफ्ता पहले की बात थी। वो उस रात अपने कमरे में अकेले थे। ईमान अपने कज़न के पास रहने के लिए गई थी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, तो उसे अपने कमरे में एक अजीब-सी खुशबू महसूस हुई। ये परफ्यूम वो इस्तेमाल नहीं करती थी और ये कोई मर्दाना परफ्यूम था। उसका दिल घबराने लगा, उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ? क्यों बौखलाई हुई घूम रही हो? तुमने तो मुझे कहा था तुम्हें नींद आ रही है और तुम आराम करने के लिए जा रही हो। कहीं फिर से तो खाला जान के घर जाने का इरादा नहीं? आमना बेगम ने उसे घूरते हुए पूछा, तो उसने नफी में गर्दन हिला दी। नहीं अम्मी, मुझे बस घबराहट हो रही है। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज रात आपके पास सो सकती हूँ? उसने मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए अपनी माँ से सवाल किया। ठीक है, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। उन्होंने कुछ सोचते हुए उसे इजाजत दे दी। वो खामोशी से अपनी अम्मी जान के कमरे में चली गई। सुबह जब वो अपने कमरे में वापस गई तो उसने देखा कि बेड पे एक बहुत बड़ा गुलाबों का बुके पड़ा हुआ था। यार वैसे तुम्हारा मंगेतर भी बहुत जबरदस्त है। हर बार तुम्हारे लिए गुलाब के फूल भेजता है। सोनिया ने उन फूलों को देखते हुए लुकमा दिया तो उसका दिल खौफ से धड़कने लगा। ये फूल उसके मंगेतर ने नहीं भेजे थे, बल्कि सिकंदर इस तरह की चीजें पसंद ही नहीं करता था। ये कोई और ही कर रहा था, मगर कौन? ये घर का ही कोई हफाजत था, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक बाहर के किसी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके कमरे तक रसाई हासिल करता। उसका ध्यान सबसे पहले फारूक की तरफ गया, जो कि कुछ दिन पहले रहने के लिए उनके घर आया था। वो उसके सर पर जाकर खड़ी हो गई। ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरह की फजूल हरकतें मत किया करो। जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे बहुत जहर लगते हो। ओ बीबी, क्या हो गया है? तुम्हारे घर में मौजूद हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी भी वक्त बगैर नॉक किए मेरे कमरे में आकर मुझे इस तरह बातें सुनाओगी। ये मेरी भी चची का घर है और मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा। दरअसल वो पेपर देने के लिए यहाँ पर आया था। उनकी हवेली गांव में थी और वो अपने वालिदैन के साथ वहीं पर रहता था। हर बार छुट्टियों में वो भी घूमने के लिए जाती थी, मगर इस बार चूंकि फारूक इधर आ गया था, इसी वजह से वो ना जा सकी। ये गुलाब के फूल तुमने मेरे कमरे में जाकर रखे? और लड़की, अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हें लगता है कि तुम इतनी प्यारी हो कि मैं तुम्हें ये फूल दूंगा? वो उसके हाथों से फूल खींचते हुए अपने बेड पे रखते हुए बोला, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे रख जाओ। तो फिर ये कौन रख सकता है? आखिर कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? अगर कोई मुझे फूल देगा तो मां कसम मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। वो उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा था और पांव पटकती हुई वो वहां से बाहर निकल गई। जैसे जैसे उसकी मंगनी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे सब कुछ अजीबो गरीब होता जा रहा था। जब भी वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलती तो उसे यूं महसूस होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो पलट कर देखती तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता था। एक दिन वो सिकंदर के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। वो उसे लेने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचा था। वापसी पर उन दोनों ने शॉपिंग के लिए जाना था। उसने अपनी मंगनी के लिए जोड़ा भी पसंद करना था। वो मुसलसल नोट कर रही थी कि काले रंग की ब्लैक सी प्राडो उनके पीछे आ रही है। उसने जब सिकंदर से इस बारे में बात की तो वो उसकी बात को मजाक में उड़ा गया। उसे बुरा तो बहुत लगा, मगर वो खामोश हो गई। कभी कभार मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में जरा से भी सीरियस नहीं हो। ना चाहते हुए भी उसके लबों पर शिकवा आ गया था। बीबी, अगर मैं तुम्हारे लिए सीरियस ना होता तो कभी भी अपने पेरेंट्स को लेकर तुम्हारे घर ना आता और 2 दिनों के बाद हमारी मंगनी हो रही होती। तुम भी पता नहीं क्या सोचती रहती हो और अपने साथ साथ मुझे भी परेशान करती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर तरह की फजूल सोचों को अपने जहन से झटक दिया करो। वो फौरन ही सफाई पेश करने लगा था, जबकि वो खामोशी से शीशे से बाहर देखने लगी। उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। ये बात उसने आज नोट नहीं की थी, बल्कि पहले भी कई बार नोट कर चुकी थी कि सिकंदर उससे मोहब्बत का इजहार तो करता था, मगर उसकी बातों को वैसे अहमियत नहीं देता था जैसे उसे देनी चाहिए।
बस अपने मुंह से चंद मोहब्बत के अल्फाज बोलकर वो यूं समझता था जैसे उसने अपना हक अदा कर दिया। हालांकि मोहब्बत सिर्फ इजहार का नाम तो नहीं होता। वो उसे यही समझाना चाहती थी। उसने अपनी मंगनी का ड्रेस लिया था। इसी दौरान भी वो अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश को महसूस करती रही। उसने निगाहें उठाकर देखा तो एक आदमी पर उसकी नजरें जम गईं। उसके परेशान चेहरे के तासुरात भी गिरने लगे थे। सिकंदर, मैं जब उसे बेतहाशा परेशान लेते तो उसे पूछने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? डरी हुई क्यों लग रही हो? उसके साथ ही उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं लड़की। उसने अरीशा का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आई। कुछ नहीं, वो सिकंदर को इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, बल्कि वो इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। वो राज सिर्फ वही जानती थी और उसका रब जानता था। क्या वही शख्स है जो मुझे घूरे जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है? एक बार फिर से उसके दिमाग में वसवसों की आमद हो चुकी थी और वो जानती थी कि अब उसकी सारी रात इसी बारे में सोचते हुए गुजरेगी। जिस दिन उसकी मंगनी थी, उस रात इसे अजनबी से नंबर से मैसेज आया, तुम ये मंगनी मत करो वरना बहुत ज्यादा पछताओगी। उसने जल्दी से अपने कजन का नंबर मिलाया जो कि पुलिस में होता था। उसने ये नंबर उसके हवाले किया और उसे ट्रेस करने के लिए कहा। उसके कजन ने उसे तसल्ली दी कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वो अब काफी हद तक उस तरफ से बेफिक्र हो गई थी कि उसका कजन पुलिस में है तो वो सब कुछ संभाल लेगा। मंगनी वाले दिन उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके। मगर जैसे ही वो इवेंट से फारिग होकर घर के अंदर दाखिल हुई, ईमान भागती हुई उसके पास गई। यार, सुबह से इस नंबर पर मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं। पता नहीं ये कौन है। मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारा उससे राब्ता करवाऊं। मैंने उसे ब्लॉक किया है, मगर उसने दूसरे नंबर से मुझे कॉल करना शुरू कर दी। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। मैंने वहां पर तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। प्लीज तुम खुद देखो। और इसको, ये जो कोई भी है, मुझे बहुत ढीठ लगता है। उसने अपना मोबाइल उसके हवाले किया। अरीशा ने कांपते हाथों से मोबाइल ले लिया। उस वक्त उसके कजन्स उसके घर पे मौजूद थे और उसके ससुराल वाले भी वहीं पर ठहरे हुए थे। उसने लॉन में जाकर कॉल करने का फैसला किया। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये मंगनी नहीं करोगी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से होगा। देखो, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था और अब भी तुम्हें समझा रही हूं कि मुझे तुम्हारी जात से कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतरी है कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ और मुझे तंग मत करो। तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। इंसान में जरा सी गैरत होती है, मगर तुम्हें देखकर यूं लगता है जैसे तुम में इज्जत नफ्स वाली कोई चीज ही नहीं है। उसने दिल खोल कर उसे गालियां दी। जहां तक मोहब्बत का सवाल है, तो मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की। मैं हमेशा से सिकंदर को पसंद करती थी। बचपन से मेरी उसके साथ मंगनी तय थी। मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में बताया था। तुम्हें मैंने कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम इस तरह की धमकियों से मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। उसने अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए साफ अल्फाज में जवाब दिया और झट से कॉल काट दी। इस वाक्य को 3 दिन गुजर चुके थे कि उसने उसी शख्स को अपने घर में देखा। तब उसे पता चला कि वो उसके बाबा का बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला है। वो जितना उससे दूर भागने की कोशिश करती थी, वो इंसान उतना ही उसमें इन्वॉल्व हो रहा था। कभी कभार तो उसे लगता था कि शायद सारी जिंदगी के लिए वो इस इंसान के साथ फंस गई है। उसके साथ साथ उसे सिकंदर से भी डर लगता था कि अगर सिकंदर को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सिकंदर को हर चीज मंजूर थी। उसने अरीशा को आजादी भी इसी शर्त पर दी थी कि वो कभी भी अपनी हद पार नहीं करेगी और न ही किसी इंसान को इतनी इजाजत देगी कि वो उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर सके। पिछले कुछ दिनों से फिर से उसे एक नंबर पर कॉल आती थी, लेकिन जैसे ही वो कॉल रिसीव करती तो सामने की तरफ गहरी खामोशी छा जाती थी। एक नंबर का डीठ इंसान है। वो एक दिन खुद से बात कर रही थी कि ईमान उसके पहलू में आकर बैठी। किसकी बात कर रही हो? सिकंदर साहब की तो तुम बात नहीं कर सकती क्योंकि वो तो बहुत अच्छे हैं।
اور بالکل بھی ڈھیٹ نہیں ہے، تو پھر یہ کون سا انسان ہے؟ یار، کافی دنوں سے ایک رونگ نمبر مجھے پریشان کر رہا ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ کہیں وہ وہی انسان تو نہیں جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں؟ نہیں یار، وہ اتنا چپکو نہیں ہو سکتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ جتنی انسلٹ میں نے اس کی تھی، اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ مگر وہ ہمارے بابا کا بزنس پارٹنر بن گیا ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ایٹ لیسٹ تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، وہ بہت خوددار اور مغرور انسان ہے، اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری بات سچ نکلے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں موجود کلاس لے رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی، دوبارہ سے بجا، پھر سے اس نے کال کاٹ دی، لیکن جب تیسری بار بجا تو وہ موبائل اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے گالیاں دینا چاہتی تھی، مگر موصوف کی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کا جسم خوف کے مارے کانپنے لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے کیے کی سزا کبھی اس کی بہن کو ملے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، اور جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنی زندگی سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور جب تک میں تمہیں حاصل نہیں کر لیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لگتا ہے تم نے میری باتوں کو سیریس نہیں لیا۔ اب تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، ابھی اور اسی وقت منگنی توڑ دو۔ اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ تم سکندر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ میں تو تم پر احسان کر رہا ہوں، تمہیں کافی موقع دے رہا ہوں کہ تم اپنی پیاری پھول جیسی بہن کو بچا لو۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہاری بہن بھی تمہاری طرح حسین ہے اور کم عمر بھی ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو چلو میں اس کے ساتھ ہی اپنے سارے خواب پورے کر لوں گا۔ وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی، سائم پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد اس نے اس شخص کا نام لیا تھا۔ اسی وقت سائم کا دل دھڑکنا رک گیا۔ اسے تو لگا کہ اب اسے کبھی بھی اس لڑکی کی باتوں سے فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ کیا؟ عریشہ نے صرف نام لیا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ کیا ابھی بھی وہ اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا؟ کیا ابھی بھی وہ اس لڑکی کے پیچھے پاگل تھا، یا پھر وہ اسے صرف تباہ کرنا چاہتا تھا؟ عریشہ، تمہارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہاری بہن گھر واپس نہیں آئے گی، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جو لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر گزارے اس کے کردار پر داغ لگ جاتا ہے۔ سوسائٹی اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس وقت بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سائم کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کرسی پر بندی ایمان پر ڈالی۔ آپ میری بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تمہاری بہن نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسے پتا تھا کہ میں اسے بے تحاشا چاہتا ہوں۔ بچپن سے میں اس کے پیچھے پاگل تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، گیم میں اس کا ساتھی بننے کے لیے باقی لوگوں سے لڑتا تھا۔ بچپن سے میں نے اسے بے تحاشا چاہا، تو میں کیسے اسے اتنی آسانی سے کسی اور کے حوالے کر سکتا ہوں؟ آپ اس کے لیے کوئی سیدھا طریقہ بھی تو ڈھونڈ سکتے تھے۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر باجی نے انکار کیا تو خاندان والے ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تم زیادہ اپنی باجی کی طرفداری مت کرو، بلکہ اپنے بارے میں سوچو۔ وہ اس کے سر پہ ہلکا سا تھپڑ لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ایمان نفرت سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ صبر عظیم عطا فرما، اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سائم ڈھیٹ ہے، اور وہ اپنی بہن سے بھی واقف تھی کہ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک لڑکی ہے۔ صاحب جی، بی بی صاحبہ منگنی توڑ دی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے سکندر صاحب غصے سے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے ان کے منہ پر کہا ہے کہ وہ ان سے شادی نہیں کریں گی۔ سب گھر والے ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بند ہیں۔
उसे ये खबर कोई और नहीं बल्कि उसका जासूस दे रहा था, जो कि अरीशा के घर में कुक था। ये तो बहुत ही अच्छी खबर दी तुमने। चलो ईमान बेटा, आपके घर जाने का वक्त हो गया है। उसके साथ ही उसने ईमान पर एक नजर डालते हुए कहा और उसकी रस्सियां खोलने लगा। क्या आप वाकई मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं? अगर तुम्हारी बहन एक बार मेरा हाथ थामने का फैसला करे तो खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में रख दूंगा। वैसे साइम भाई, अगर मैं आपको सच कहूं तो मुझे आप अच्छे लगते हैं। सिकंदर भाई मुझे जरा भी पसंद नहीं। वो मुझे बहुत अजीब लगते हैं। वो आप ही को भी अजीब नजरों से देखते हैं। पता नहीं आप ही क्यों उनसे मोहब्बत करती हैं। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी आपी उस शख्स से नफरत करने लगेगी। उन दोनों में फौरन ही दोस्ती हो गई थी। चलें मैं चलती हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी बहन के बारे में सारी खबरें मिलती रहें तो फिर आपको मेरे साथ एक डील करनी पड़ेगी। साइम ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। एक दिन की रिपोर्टिंग का 1000। उसने ये कहकर अपना हाथ फैलाया। साइम ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से वॉलेट निकालकर उसके हाथों में रख दिया। ये तुम्हारे 1 हफ्ते की एडवांस तनख्वाह है। अब तुम अपनी बहन के बारे में एक एक बात बताओगी। ये देखकर उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वो खुशी से चीख पड़ी, वाह साइम भाई, आप तो बहुत अमीर हैं। अब आप बेफिक्र हो जाएं, अब तो बाजी की शादी आपसे ही होगी। उसने थोड़े से पैसों के इव्ज अपनी बहन को ही बेच दिया था। साइम ने उसे उसके घर के सामने ड्रॉप किया। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो आमना बेगम सोफे पर बैठी हुई थी। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में गिराया हुआ था। करीबी इकराम साहब भी मौजूद थे। वो आज ही अमेरिका से वापस आए थे और आज ही उनकी बेटी ने तमाशा खड़ा कर दिया था। वो इस कदर परेशान थे कि उन्होंने ईमान से पूछा भी नहीं कि वो इतनी लेट क्यों घर के अंदर दाखिल हुई है। जैसे ही आमना बेगम ने ईमान को देखा तो वो बोल पर ही जाके अपनी बहन को समझा, इसका दिमाग खराब हो गया है। इसने शादी को गुड्डे गुड्डी का खेल समझ रखा है। जब दिल करता है मंगनी कर लेती है, जब दिल करता है मंगनी तोड़ देती है। उसने हमें सब लोगों के सामने जलील करके रख दिया है। अम्मी जान, अगर बाजी का ये शादी करने का दिल नहीं है तो आप क्यों उन्हें मजबूर कर रही हैं? आमना बेगम ने गुस्से से ईमान को घूरा तो वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि बाजी की अपनी जिंदगी है। उन्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक होना चाहिए। तो बेटा जी, ये मंगनी भी हमने उसी के कहने पे की थी। अगर उसे ये शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती। इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? पहले सायम बेचारे को जलील किया उसने, और अब सिकंदर को। मुझे तो इस लड़की में कोई मसला नजर आ रहा है, वरना बच्चे तो दोनों ही अच्छे थे। उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा, आज से तकरीबन 2 साल पहले सायम भी अरीशा का रिश्ता लेकर आया था। साइम गर्देजी, जो कि मुल्क का जाना माना बिजनेस टाइकॉन था। वो बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक था। जो भी उससे मिलता उसका गर्विदा हो जाता था। मगर वो सिर्फ एक ही लड़की के पीछे पागल था, और वो थी अरीशा साहिबा। वो इकराम साहब के दोस्त का बेटा था। अरीशा से तकरीबन 4 साल बड़ा था। बचपन से ही उसके घर में आता जाता रहा था। वो बचपन से उसे बहुत पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था। जहां तक अरीशा का सवाल था तो उसने हमेशा ही साइम को अपना दोस्त समझा था, और वो दोस्त की हैसियत से उससे बात करती थी, उसके साथ घूमने फिरने के लिए जाती थी। बचपन में उसकी सिकंदर से नहीं बनती थी, और फिर जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया तो साइम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने अरीशा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और फिर साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। उसने साइम को बताया था कि वो सिकंदर से मोहब्बत करती है। साइम उस वक्त एक मामूली से बिजनेसमैन का बेटा था, और इसके बाप का कारोबार भी दिन ब दिन डूबता चला जा रहा था, जबकि सिकंदर बहुत अमीर था और अरीशा को शुरू से ही पैसे वाले लोग अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे। इसी वजह से वो सिकंदर में अपना मुस्तकबिल देखती थी। उसने साइम को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था। साइम को इनकार का इतना दुख नहीं हुआ था
जितना दुख उसे इस चीज का था कि वो गलत शख्स से मोहब्बत कर बैठी है। वो सिकंदर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था, जो हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था। हर लड़की के साथ उसका ताल्लुक होता था, मगर ये बातें अरीशा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। साइम ने एक आखिरी कोशिश की और अपने पेरेंट्स को उसके घर भेज दिया। आमना बेगम तो अपनी बेटी देने के लिए राजी हो गई थी, मगर अरीशा ने बहुत बड़ा तमाशा किया। वो मेहमानों के सामने जाकर उनसे बदतमीजी करने लगी और उसने साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं आपके कंगले बेटे से शादी नहीं करूंगी। उस दिन साइम ने खुद से वादा किया था कि वो उसको दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनकर दिखाएगा। उस दिन से वो इस घर से तो चला गया, लेकिन जो जख्म उसके दिल में लगा था वो आज तक नहीं भर पाया। ईमान ने अपनी बड़ी बहन को बहुत डांटा था कि तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह की बातें करने की, उस बेचारे का दिल टूटा होगा। अरीशा ने लापरवाही से कहा, उसे फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ दोस्ती थी। उसने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को उसने कुछ टाइम पहले जलील किया था वो इंसान उसके सामने आ जाएगा। बाजी, अगर मेरी मानो तो खामोशी से साइम का हाथ पकड़ लो, वो तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है। तुम चुप कर जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम पैदा ही ना होती तो वो कभी तुम्हें अगवा ही ना कर सकता। मैंने तुम्हें बचाने के लिए एक बार फिर से अपने आप को खतरे में डाल दिया। वो उस वक्त बहुत ही बेबस नजर आ रही थी। रो रो कर उसने अपना हाल बुरा कर लिया था। बाजी, सच तो यह है कि वो इंसान कभी आपके काबिल था ही नहीं। उसने आपकी आंखों पर अपनी मोहब्बत की झूठी पट्टी बांधी हुई है। पता नहीं उसने आपसे ऐसे कौन से वादे किए हैं कि आपको इसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। और वैसे भी कुछ अरसा पहले तक आपने साइम को सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से छोड़ा था। अब तो वो सिकंदर से भी अमीर हो गया है, तो फिर आप उसे क्यों नहीं अपना लेती? मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी साइम से शादी नहीं करूंगी। मुझे उससे शदीद नफरत है। वो हल्क के बल चिल्लाते हुए बोली, ठीक है फिर आपकी मर्जी, आप जैसा मर्जी करें। मैं कल सिकंदर से मिलने के लिए जा रही हूँ। आप पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कर रही हैं? वो बुरी तरह से बौखला गई। मैं जो कुछ कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ, उसने गुस्से से जवाब दिया। और खबरदार जो तुमने अपनी अम्मी को इस बारे में कुछ बताया। फिक्र मत करें, मैं अम्मी को तो नहीं बताऊंगी। बात करते करते वो खामोश हो गई। तुम किसी को भी नहीं बताओगी, ये कहकर अरीशा कमरे से चली गई, जबकि उसके जाने के फौरन बाद उसने अपना मोबाइल निकाल लिया था। साइम भाई, आपके लिए एक बहुत ही काम की खबर है, मगर उसके लिए आपको मुझे तकरीबन 3,000 देने होंगे। जैसे ही उसने मैसेज किया, दूसरी तरफ से उसे स्क्रीनशॉट मिला। साइम उसके अकाउंट में 3,000 ट्रांसफर कर चुका था। वो खुलकर मुस्कुरा दी। भाई, आप तो बहुत अमीर हो गए, उसने दिल ही दिल में सोचा, और फिर उसे बता दिया कि वो सिकंदर से मिलने के लिए जा रही है। साइम का दिमाग गुस्से से खौलने लगा। वो इंसान उसके लिए खतरा था, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। सिकंदर एक बहुत ही करप्ट इंसान था, जो कि लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल करता था। न जाने इस मुल्क में ऐसी कितनी लड़कियां थीं जिससे उसने झूठे निकाह किए थे और फिर उन्हें बाहर का झांसा देकर बेच दिया था। साइम कभी भी उसकी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता अगर उसे सिकंदर की हकीकत पता ना चलती। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस नादान लड़की को सिकंदर से बचाने के लिए कर रहा था। वो उस वक्त होटल में बैठी बेसब्री से सिकंदर के आने का इंतजार कर रही थी। जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, जानी पहचानी आवाज सुनकर उसे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही साइम साहब खड़े थे, अपनी जेबों में हाथ डाले, लबों पर मुस्कुराहट सजाए। तुम जानती हो, तुम्हारे मामले में मैं बेबस हो जाता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर सकता, वरना कब का तुम्हें अगवा करके तुमसे निकाह कर चुका होता। मैं हमेशा तुम्हारी मोहब्बत के सामने
घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता हूँ। ये कहकर वो उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दांत पीसते हुए बोली। यही सवाल मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ। तुमने मुझे कहा था कि तुमने सिकंदर से मंगनी तोड़ दी है और अब उसी से मुलाकात के लिए यहाँ चली आई हो। वाह, ये किस तरह की लाताल्लुकी है? तुम क्यों मेरी जिंदगी में अजाब बनकर नाजिल हो गए हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं कितनी खुश थी। मेरी जिंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। तुमने एक बार फिर से मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते? वो रोते हुए बोली। आंसू मोतियों की तरह टूटकर उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो अपने दिल में दर्द उठता हुआ महसूस कर रही थी। फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, मगर तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने के बाद। तुम नहीं जानती कि वो इंसान कितना बुरा है। मुझे उस इंसान के बारे में कुछ जानना भी नहीं है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो जैसा भी है, मुझे वो कबूल है और मैं उसी से शादी करूंगी। ये सिर्फ बचपना है। तुम्हें कभी भी उससे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि तुम उसकी दौलत की वजह से उसके साथ थी। अरीशा ने बेसाख्ता निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा, जो बिल्कुल सच बोल रहा था, मगर वो कुछ भी ना बोली। वो बेचैनी से घड़ी की तरफ देखने लगी। तकरीबन 30 मिनट गुजर गए थे, मगर अभी तक सिकंदर का कोई नामो निशान नहीं था। वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? मैंने उसके साथ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये कहकर वो उठा और होटल से बाहर निकल गया। वो भी उसके पीछे भागती हुई गई थी। उसने साइम की बाजू पकड़कर उसे रोका। मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुमने उसके साथ क्या किया है? तो देखो, तुमने जो बदला लेना है मुझसे लो, लेकिन खुदा के लिए उस इंसान से दूर रह जाओ। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये कहकर वो उसके कदमों में गिर गई थी। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारा उस इंसान से दूर रहना तुम्हारे लिए ठीक है। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें मेरे दिल की हालत के बारे में नहीं पता। अगर मैं अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दूं, तो तुम भी तकलीफ में मुब्तला हो जाओ। वो रोते हुए बोली। तो साइम चंद लम्हे खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। मेरा दिल तो पिछले कुछ सालों से मुसलसल तकलीफ में है। क्या तुमने कभी मेरी इतनी फिक्र की जितनी फिक्र तुम्हें उस जलील इंसान की हो रही है? वो जलील इंसान नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत है। और अब साइम का सब्र भी जवाब दे गया था। उसने अरीशा का बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। तो मुझे कहां पर ले जा रहे हो? खामोश हो जाओ। अब अगर तुम्हारी आवाज आई तो तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें मार दूंगा। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला। अब वो थोड़ी देर पहले वाला साइम मालूम ही नहीं हो रहा था। जिस इंसान से तुम मोहब्बत करती हो, जिस इंसान को तुम दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती हो, आज मैं तुम्हें उसकी हकीकत दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने से मोहब्बत की वो पट्टी हट जाए जिसने तुम्हें पागल बना दिया है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं भी तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा, बल्कि इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में किसी भी किस्म की कोई मदाखलत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम खुद समझदार हो और अपना अच्छा भला पहचानती हो। उसे लेकर अपने बंगले के अंदर दाखिल हो गया, जो कि उसने कुछ अरसे पहले ही बनाया था। जिस दिन ये बंगला मुकम्मल हुआ था, उस दिन उसका दिमाग में सबसे पहला ख्याल अरीशा का ही आया था कि अगर उसे मौका मिला तो वो उसे अपनी दुल्हन बनाकर इस बंगले में ही लेकर आएगा। उसने टीवी ऑन कर दिया। सामने नजर आने वाली वीडियो को देखकर अरीशा को अपनी आंखों पर यकीन न आया। सिकंदर वहां पर दूसरी लड़कियों के साथ मसरूफ था। और फिर उसने एक और वीडियो ऑन कर दी, जिसमें सिकंदर कुछ लोगों के साथ डीलिंग कर रहा था और उन्हें मुस्कुराते हुए लड़कियों के खदोखाल बता रहा था। वो लड़कियों की मार्केटिंग कर रहा था। सामने ही कुछ फॉरेन के लोग बैठे हुए थे और कुछ पाकिस्तानी थे। और फिर इसके बाद एक वीडियो में वो लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए गाड़ी में डाल रहा था। ये है ये है तुम्हारे उस महबूब की हकीकत और तुम्हारे ताया के बेटे की असलियत। अपने ही रुको, मुझे तुम्हें एक और चीज भी सुनानी है।
یہ کہہ کر اس نے موبائل پر ایک ریکارڈنگ آن کر دی جس میں سکندر کسی سے بات کر رہا تھا کہ وہ بہت جلد اپنی کزن سے شادی کرنے والا ہے۔ اس کی کزن بہت حسین ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس کی کزن کو بھی بھیج دے گا اور سب گھر والوں کو یہی بتائے گا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ عریشہ کا دماغ گھومنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سائم کے کمرے میں موجود تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس انسان کو ایسی سزا دلاؤ کہ وہ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ سائم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اسے پھانسی ہو جائے گی۔ میں نے اپنی محبت کیسے انسان کے پیچھے برباد کی جو اس کا حقدار ہی نہیں تھا، مگر میں نے تو اپنی محبت اپنے حقدار کے حوالے کی ہے نا۔ سائم نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، تمہیں سکندر کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تھوڑا عرصہ پہلے ہی وہ پاکستان آیا تھا، اسے سکندر کی سرگرمیوں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، مگر جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ عریشہ سے منگنی کر رہا ہے تو اسے اس لڑکی کی فکر ہونے لگی۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی سیدھی طرح سے نہیں مانے گی، اس لیے اس نے اس کی بہن کو اغوا کر کے اس دن کی اور سب سے پہلے یہ منگنی ختم کی۔ اس کے بعد وہ سکندر کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ سکندر کے بہت سے دشمن تھے، ان سارے دشمنوں سے اس نے ہاتھ ملا لیا تھا۔ میں بس تمہیں ہر حال میں اس سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے اس وقت گھر واپس جانا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر اس نے آہستگی سے کہا تو سائم اسے اس کے گھر ڈراپ کر آیا۔ اس نے پہلے ہی آمنہ بیگم کو خبر کر دی تھی کہ عریشہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے اسپتال لے کر گیا تھا۔ آمنہ بیگم سائم کو شروع سے ہی بہت پسند کرتی تھیں اور وہ اس پر بھروسہ بھی کرتی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس بات کو مائنڈ نہیں کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سارے خاندان والوں کے سامنے سکندر کی اصلیت آ گئی۔ وہ انسان سب لوگ ہی اسے اچھا سمجھتے تھے، اب سب کو اس سے نفرت ہو گئی، یہاں تک کہ سکندر کے اپنے باپ نے بھی کہہ دیا کہ وہ اسے اپنا بیٹا تسلیم ہی نہیں کرتے۔ عریشہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ سائم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور اس سے معافی بھی مانگنا چاہتی تھی۔ ان دنوں وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، نہ تو اس کی فاروق سے ملاقات ہوتی تھی نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے خبر ملی کہ سائم اس کا رشتہ لے کر آیا ہے۔ اس بار آمنہ بیگم نے اس کی ایک بھی سنے بغیر اس کا رشتہ سائم سے طے کر دیا۔ وہ دلہن بنے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، سائم نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ کمرے میں آ کر پہلے اس نے عریشہ کا دیدار کیا، شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس نے عریشہ کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے غلط انسان سے بچایا تھا اور ایک بہت ہی اچھا انسان اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ سائم نے کبھی بھی اسے ماضی کا حوالہ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی اس سے اونچی آواز میں بات کی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔